السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارے ماموزاد بھائی مرزا ہارون بیگ کے انتقال کی ہے جو خبر سنائی ہم نے 12 بجے کے بعد ہوا ہے، شاید 2 بجے ہوا ہے۔ اللہ سڈن کوئی یہ نہیں، زندگی انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دعائے مغفرت فرمائے ان کے حق میں، اللہ ان کو جنت الفردوس، مرزا ہارون بیگ، اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی آمین۔ تبدیل فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام فرما دے۔ یہ جو ساتھ میں آسمان تک جاتی ہے وہ اللہ ان کا سفر آسان فرما دے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ انہیں اعلیٰ ترین عطا فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی خبر نورانی روشن منور معطر کر دے، خبر سے بچائے، خبر کی سختی سے بچائے، خبر کی تنگی سے بچائے، اللہ اللہ اسے جنت الفردوس کا باغ بنا دے، یا اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، میری بہن کی، میرے ماں باپ کی، میرے بچے کی، اور کل امت محمدیہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ہمارے گروپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ سب کی مغفرت ہماری فرمائے۔ ایک دن سب کو جانا ہے، موت تو یقینی ہے، زندگی کا ہی بے ثباتی ہے، زندگی بہت غیر یقینی ہے، ہر کسی کو جانا ہے، اللہ ہمیں اس سے پہلے، موت سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کر لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت عطا فرمائے، آخرت اچھی فرمائے، جنت کی مستحق بنا دے، جنت پہ لے جانے والے عمل ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی ناراضگی والے عمل سے بچائے، اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعت سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سے راضی قبول فرما دے، یہ حالات جو مسلمانوں پر ہیں اللہ یہ بھی دور فرما دے، حالات بہتر فرما دے، یا اللہ دنیا کے مسلمانوں کو جان و مال کی عزت و آبرو کی صحت و ایمان کی حفاظت فرمائے، راشد عالمی مہاجد نبوہ قائم فرما دے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور اسلام کا بول بالا عطا فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں جو کام آنے والے چیزیں ہیں بس یہی ہے، یہ دنیا میں جو عمل ہم کر سکتے ہیں، اس سے کوتاہی ہماری نہ ہونے پائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وقت سے پہلے ہمیں تیار ہو جانا اللہ ہمارا مقدر فرمائے، آمین۔ 135 ہو گیا تھا، 136 پر آئیں گے ہم، آیا نمبر 136۔ یہ پچھلی صورت آپ کو پتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب ہم ان پر سے اپنے عذاب ایک وقت مقررہ کے لیے ہٹا دیتے تھے تو انہوں پھر سرکشی پر آ جاتے تھے، اپنی پرانی روش پر آ جاتے تھے، پھر وہی پرانا حال ہو جاتا تھا ان کا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ کتنے ہی عذاب آئے ان پر، بتایا ہے اللہ نے، ٹڈی کا آیا، پیسو کا آیا، خون کا آیا، وہ کمیلا کا آیا، پھر طوفان کا آیا، پھر ان کے نقسم من ثمرات، وہ جو پھلوں کی کمی ہوئی، غلہ کی کمی ہوئی، یہ ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ 15 دن عذاب ہوتا، روایتوں میں آتا ہے 15 دن عذاب ہوتا، پھر یہ پھر جاتے، 15 دن میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے، تمہارا قول و قرار ہے نا، اللہ کے پاس قول و قرار ہے، تم بات بھی کرتے ہو، عہد لیا ہے، اللہ کا قول و قرار جو ہے اس کے بنا پر ہمارا یہ دعا کر کے ہماری یہ جو عذاب کا یہ ہے اسے ٹلا دو، پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لا لیں گے،
اللہ کے وحدانیت پر ایمان لا لیں گے، تمہاری تعلیمات کو مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، یہ وعدہ کرتے، پھر مکر جاتے، پھر وعدہ کرتے، پھر مکر جاتے، پھر عذاب آتا، پھر وعدہ کرتے، پھر مکر جاتے۔ ایسا ہوا کتنا 9 یا کچھ 11 کا عذاب کا ذکر آ رہا ہے روایتوں میں۔ پھر ان کی حالت سدھرنے والی نہیں تھی، آخر کار اسی روش پر آ گئے، تو ان کو ڈھیل جتنی دی گئی دینے کے بعد اللہ کیا کیا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہم غافلین۔ کیا تھے یہ؟ ہم نے انتقام لے لیا، اب ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، عذاب میں مبتلا کرے تو بھی پھر وہی روش پر واپس آ جاتے تھے، تو آخر کار ہم نے ان سے انتقام لے ہی لیا۔ فانتقمنا، فا پس انتقما ینتقمو، انتقام اردو ورڈ ہی ہے، انتقام لینا، بدلہ لے لیا ان سے، ان کو سزا دے دی ہم نے، انتقام لے لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم، کیسا انتقام، آغرقنا غرق غرق کر دیا دریا میں، ان کو غرق کر دیا، فی میں یمی، دریا میں، دریا میں، یم دریا کو بھی بولتے، بحر بھی بولتے، بر زمین کو بولتی ہیں، بحر سمندر کو بولتے، فی الیمی، دریا میں ہم نے ان کو غرق کر، پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ اب اس کا پورا واقعہ کس میں آ رہا ہے؟ سورہ یونس میں آ رہا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ سورہ یونس میں آ رہا ہے، پھر سورہ شورہ میں بھی آ رہا ہے، تو وہاں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، بہت کچھ تو ہمیں معلوم بھی ہے، کیسا غرق ہوا، لاؤ لشکر اس کا کیسا پیچھا کریا، جب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کی نفری لے کر نکلے، راتوں رات نکلے، تو پتہ لگ گیا ان کو اب اتنی بڑی نفری نکل رہی ہے، کیسا آرگنائز کرے ہوں گے، لوگوں کو سب جمع کرنا، ان کو نکالنا، اب یہ سب کیا کیا لے کر نکلے ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خبتیاں ہیں نا، خبتیاں، فرعون کی قوم، خبتی لوگ، انہوں یہ پیغمبر کی اولاد سمجھ کر ان کو بہت معتبر آدمیاں، ٹرسٹ کر سکتے ان کو، یہ سمجھ کر ان کے پاس کیا رکھتے تھے، سونا چاندی وغیرہ کے زیورات وغیرہ ان کے پاس رکھتے تھے، جیسا ہم لاکرز میں بینک میں رکھتے ہیں، ویسا یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس رکھتے تھے، بنی اسرائیل کے پاس سے، پیغمبر کی اولاد ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ان کے پاس رکھتے تھے، بھروسے کے اوپر رکھتے تھے، تو یہ سب لے کر نکلے، اب کہاں پھینک کر نکلیں گے، یہ لے کر نکلے، یہ پورا ان کا سامان سب کچھ نہیں، صرف سونا چاندی وغیرہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کا بھی تفصیل سے واقعہ سورہ یونس میں پڑھیں گے اور سورہ شورہ میں پڑھیں گے۔ اب اتنا ہی یہاں جاننا کافی ہے کہ انہیں غرق کر دیا فی الیمی بانہم، اس لیے کہ کیونکہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ کانوا عنہا غافلین، اور یہ جھٹلاتے بھی تھے اور اس سے بے پرواہ ہو گئے تھے، کتنی ہی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام نے کی، کتنا ہی ان کو تنبیہ کیا، وارننگ دی، تو کسی بات پر بھی یہ آتے ہی نہیں تھے، اس کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے، بے پرواہ ہو گئے تھے، بے اعتنائی برتتے تھے، جھٹلاتے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ ہمارا بھی کیا حال ہے، ہم کون سا لیتے ہیں اللہ کی آیات کو، اس لیے تو ہماری بھی یہ حالت ہے، ہمیں برباد نہیں کرے گا اللہ، اجتماعی ہلاکت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آخری دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ میری امت اجتماعی ہلاکت کا شکار نہیں ہوگی، وہاں تب عذاب آتے رہتے، چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے، لیکن اجتماعی کلیکٹیولی پوری قوم کو برباد کرنے کا، جیسا عاد کا، سمود کا، یا ہود علیہ السلام کی قوم کا، ان سب کا جیسا معاملہ ہوا، ویسا مسلمانوں کا نہیں ہوتا، مومنوں کا نہیں ہوتا، مسلمانوں کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وعدہ ہے، ورنہ کبھی ایک ہی برباد ہو گئی رہتی، پورے منافقانہ حرکات ہے ہمارے پاس، اور سارے تعلیمات کی حکومت لی ہے، کسی تعلیم پر ہم نہیں ہیں، سود نہیں کھاتی، بینکنگ سسٹم کو بھی جائز قرار دے لیا، اپنا ہی جواز، ہمارے مفتیان کرام بھی سیل ہونے والے، بکنے والے مفتیان کرام کیسے کیسے فتوے دیتی، کیسے پوزیشن پر ہے، انہوں کتنی رہنمائی کرنا ہے، پورا الٹا گمراہ کر رہی، ہاں یہ صحیح ہے، جاؤ بناؤ، ہاں یہ کام کر سکتی، یہ بینکنگ کر سکتی، یہ کام کر سکتی، یہ جائز ہے،
अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए। हमारा हाल भी जी ऐसा ही है जैसा हुआ था, बनी इसराइल का हुआ। वो औरसनल कौम अल्लज़ीना, अब आगे, अब हो गया, वो गर्क हो गया, ये एकदम नहीं हुआ, ये मरहले हैं। कुरान सारे जुजियात को बयान नहीं करता, इंट्रिकेट जो छोटी मोटी खबरें हैं, कितना अरसा गुजरिया, क्या क्या हुआ, कैसा निकाले, ये सारे यहाँ पर नहीं आया है। बाइबल से लिया गया है, तौरात से लिया गया है, और कई कई जुजियाती तौर पर डिफरेंट डिफरेंट सूरतों में वाक़ियात आए हैं। ये वाक़ियात, एक एस्पेक्ट यहाँ बयान हुआ, दूसरा एस्पेक्ट और कहीं बयान हुआ, तीसरा एस्पेक्ट और कोई किसी और सूरे में बयान हुआ, ऐसा करके पूरा बयान तो हुआ है, लेकिन बहुत जुजियाती तौर पर इंट्रिकेटली स्मॉल थिंग्स बयान नहीं हुए। अब यहाँ भी हमें लेना है कि ये जो गर्क हुआ उन्हें, उसके फिरौन गर्क होने के बाद, फिरौन उसकी सारी कौम जो भी पीछे आई, लाव लश्कर जो भी आया, वो गर्क होने के बाद ये इन लोगों को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार कर दिया। समंदर पार करने के बाद अब आए साहिल की तरफ। अब साहिल से गुजर कर कहाँ से गुजरना है, ये देखिए, ये उन्होंने एक्सोडस कहते हैं इसको, एक्सोडस। एक्सोडस बोले तो क्या, बाबे खुरूज उनका है, ये तौरात में आया है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने वो भेजा मैप है भेज, नक्शा, जी जी देखिए। नक्शा भेजा है, देखिए एक्सोडस कैसा हुआ, कहाँ से पार कर रहे हैं, ये कहाँ से गुजर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ना, कहाँ जी से पार कर रहे हैं ये देखिए, ये नक्शा देखिए, आपको मालूम होता है दरिया ये नील जो दरिया क्रॉस कर में। रहे हैं। आगे थोड़ा ये है तशरीह, उसकी भी बयान कर देती हूँ बाद में। तो पूरा आए, वो साहिल कने आए, वहां ये कोई बुत परस्ती वाली कौम थी, उन्होंने बुत परस्ती में मुब्तला थे, एतकाफ कर रहे थे। एतकाफ बोले तो बैठना, उसके ऊपर ध्यान करना, वो मेडिटेशन करना, वो करते हुए बुतों के सामने बैठे रहते। फिर इनकी वो जो गुलामाना जिंदगी में जो उन लोगों को, खप्तियों को देखा था, फिरौनियों को देखा था माथा टेकते हुए और उन लोगों की परस्तिश करते हुए, देवताओं की परस्तिश करते हुए, फिर इनकी वो जो पुरानी ये ताजा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा इन्होंने कि हमें भी ऐसा एक देवता बना दो, देवी या देवता बना दो, हम भी ऐसी परस्तिश करेंगे। मूसा तो सर पकड़ के रह गए होंगे, क्या है ये तुम्हारी हालत, तुम तो पैगंबर की कौम हो, तुम्हें इतनी मुश्किल से तुम्हें तालीम देने के लिए, तुम्हें रहनुमाई करने के लिए, ताकि तुम आगे दूसरों की रहनुमाई कर सको, तुम्हें बना रहा है अल्लाह एक रहनुमा कौम, तो उसके लिए मैं तुम्हें बचा कर लाया हूं वहां से, और तुम फिर उसी दलदल में जाना चाहते हो, उसी गुलामी की जिंदगी में जो परस्तिश वहां हो रही थी, उसी की छाप लेकर आए हो। परेशान हो जाती मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उनको तनबीह करती, फिर वो हुआ। उसके बाद यहाँ आती, सहराए सीना में आती, वहां जो गुजर बसर होता है उनका, 40 साल सरगर्दा फिरती। क्यों फिरती, फलस्तीन को जाने का, फलस्तीन और शाम को फतह करने का, तब मिल को था, फलस्तीन और शाम मिला हुआ था, अब अलग अलग है। तो वो फतह करने का हुक्म हुआ था, इन्हों पूरा जवाब दे दिया, इनमें हिम्मत ही नहीं थी, और इन्हों गुलामी में रहकर एक अलग ही टाइप की जिंदगी के आदी हो गए थे। कोई जुस्तजू करना, कोई एक हिम्मत का कदम उठाना, इनमें वो बात ही नहीं रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम सर पकड़ कर रह गए और दुआ की अल्लाह से कि क्या या अल्लाह, इनके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, इनको मुझे अलग कर दे। तो अल्लाह ने अलग तो नहीं किया, वो दुआ तो कबूल नहीं हुई, इन्हीं के साथ रहना पड़ा, मौत तक भी इन्हीं के साथ रहना पड़ा। लेकिन ये एक सजा अल्लाह ने मुसल्लत कर दी कि ये जो सहरा नवर्दी है, खाक छानना, सहरा की खाक छानना, सहरा में सरगर्दा फिरने की सजा इन पर वारिद कर दी। कितने साल के लिए, 40 कितने साल के लिए, 40 साल के लिए, 40 40 साल सरगर्दा फिरना। 40 साल वो हुए, 40 साल में फतह नहीं हुआ फलस्तीन ने। उसके बाद फिर 28 ईयर्स, फिर 28 ईयर्स, इस 40 साल में क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। अब कौन रहे इनके शागिर्द अव्वल, नंबर 1 शागिर्द, यशू बिन नून। अब इनकी रहनुमाई की जिम्मेदारी जो इन्होंने ली, तो अब क्या हुआ था, ये कौम, ये जो
गुलामी का धब्बा लेकर आई थी, गुलामी की छाप थी उनके दिलों पर, वो भी खत्म हो गई, एक नस्ल खत्म हो गई। अब उनके बच्चे जो सहरा की खाक में, सहरा की धूप में पलकर बड़े हैं, इनमें वो हिम्मत थी, इनमें वो जवामर्दी, वो पामर्दी थी। तो यीशु बिन नून की सरकर्दगी में, उनकी सिपह सालारी में, ये नौजवान कौम को लेकर फलस्तीन फतह हो गया। ये लोग तो कोरा जवाब दे दिए थे। ये सारा वाकया फिर दूसरे सूरतों में भी आता है, वहां हम पढ़ेंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है वो और असनल कौमल लजीना कानू यस्तदफूना मशारिकल अर्द व मगारिबल्लती बारकना फीहा। ये थोड़ा वर्डिंग सबको बहुत दकीक easy मालूम होते होंगे, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वो और असना हमने वारिस बनाया, अल कौमा वो जो um कौम, अल्लजीना वो जो, कानू थे, युस्तद अफूना। अब इसका थोड़ा रूट वर्ड बता दीजिए, आगे का पीछे का हटा के, मुजारे के निशानियां हटा दीजिए और जमा सालिम का सीगा हटा दीजिए, क्या बचा? تزفون बोलिए। أفواه تزفون تزفون ज़ाफ ज़ाफ ज़ाफ, वेरी गुड, आप करीब तो हैं। ज़ाफ 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 किसे बोलते हैं? ज़ईफ भी इसी से है। ضعيف ضعيف हाँ, कमजोर। ये जो कमजोर को कमजोर थे ना, कौन कमजोर थे? बनी इसराइल कमजोर थे, दबा लिए गए थे, पीस डाले थे, उनको गुलामी में जकड़ लिया था, बॉन्डेड लेबर की हैसियत से थे, तो उनको अल्लाह ने वारिस बना दिया। ये कौम कैसी थी? अल कौम अल्लजीना, ये सब वर्डिंग्स है, ये उस्लूब है अरबी का। बामहाविरा उर्दू का तर्जुमा करें तो क्या होगा? वो कौम जो गुलामी में जकड़ी गई थी, उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे, उनको सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया। यानी सरजमीन फलस्तीन और शाम जो मिल्क था, उसका वारिस बना दिया। अब देखिए, वो औरसना हमने वारिस बना दिया, अल कौम अल्लजीना वो जो कानू थे, युस्तदफूना जो ज़ईफ, दबाए गए, कमजोर समझे जाते थे, उनको वारिस बना दिया। किसका? मशारिकल مشرق अर्दी المغرب का वो मगारिबहा, مشرق मगरिब और المغرب मशरिक का, अल्लती वो जो, बारकना बरकत रखी बरकत हमने, फीहा उसमें। अब इतना कहकर क्या कह रहा है अल्लाह? हमने पूरा कर दिया, ये जो हमारा वादा था वो तम्मत, पूरा कर दिया। तम्मत तमाम उर्दू का ही तमाम वर्ड है। कलिमतु वादा, रब्बिका उसके तेरे रब का वादा पूरा हो गया, अल हुस्ना अच्छा हो अच्छा गया, अला बनी इसराइला बनी इसराइल पर, बीमा उसके बदले में, किसके बदले में दिया? सबरू सबर के उन्होंने सबर किया ना। क्या सबर किया उन्होंने? किस पर सबर किया? किस पर सबर किया? जुल्म सहा लिया क्या जुल्म हुआ? इन पर क्या जुल्म हुआ? बनी इसराइल पर बड़े बड़े जुल्म, दो बड़े जुल्म हुए, दो बार हुए। एक 40 साल पहले हुआ, एक 40 साल बाद हुआ। बाद हुआ टिड्डियां उनके क्या ये हुआ? 40 साल उनको फिरने फिरने छोड़ डाले थे ना, किस उनको राउंड में। फलों की से खाने के मेवा पर नहीं 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 नहीं, ये पहले की बात कर रहा है अल्लाह, जो यहाँ आने से पहले की बात। यहाँ लाया उन्हें और उसके बाद फलस्तीन को फतह करने के लिए फलस्तीन फतह करा दिया, ये विरासत दे दिया, उनको वारिस बना दे दिया। किस लिए वारिस बनाया? बीमा सबरो, क्या सबर किया उन्होंने? ये जो कत्ल किया था, वो लड़कों को कत्ल कर देते थे। 40 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तब भी कत्ल किया था, पूरी बनी इसराइल की नस्ल को, नरीना औलाद को खत्म कर दिया था। 40 साल बाद भी जब ये लोग जादूगर ईमान ला लिए, तो तब भी कत्ल करने का, अब ये बनी इसराइल को खत्म कर दो। अब इसे जो मैन पावर सप्लाई होता है, मैन पावर मिलता है, फोर्स मिलता है, तकवीत मिलती है मूसा को, किससे मिलती है? बनी इसराइल से मिलती है, बनी इसराइल के नरीना औलाद से मिलती है, मर्द बच्चों से मिलती है, तो उनको कत्ल कर दो। फिर कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ, 2 बार शुरू हुआ। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम इनको तसल्ली देती कि तुम क्या करो? सब्र करो। इस्तईनो बिस्सब्र, एक तो
अल्लाह से मदद मांगो और दूसरा सब्र करो। और ये बात यहाँ फरमाए, इससे पहले आया था मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पेशन गोई कर दी थी, हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें इस जगह पर वारिस बना दे। इस जगह मतलब मिस्र नहीं, फलस्तीन। मिस्र का भी कहीं कहीं रिवायतों में बताया जा रहा है, लेकिन मिस्र नहीं। बारक ना कहा किस जमीन की तरफ इशारा है, मिस्र है, इसकी तरफ, फलस्तीन की तरफ। की तरफ। फलस्तीन को कहा जाता है कि ये बरकतों वाली जमीन है। क्यों बरकतों वाली जमीन है? वहीं सारे मोस्ट ऑफ द अनबिया का मस्कन भी रहा है वो जगह। मस्कन बोले तो रहने, ड्वेलिंग, रहने का, रहने बसने की जगह। और मदफन भी वहीं पर मदफन है, मदफून है। सारे वहीं पर मदफन है, मोस्ट ऑफ देम, सारे, मोस्ट ऑफ देम। बाकी के दूसरे जो हैं वो बनी इसराइल के थोड़े दूसरी जगह भी हैं, लेकिन ज्यादातर यही है। तो ये मस्कन भी रहा, मदफन भी रहा, यही सारे अनबिया करम पैदा हुए। तो ये बहुत ही बरकतों वाली जगह बना दिया है। और कहा भी जाता है कि यहाँ का जो अनाज है, यहाँ का जो गल्ला है, यहाँ का जो फल है, यहाँ का जो सब्जा है, सब उम्दा क्वालिटी के हैं। फल भी बहुत मीठा, लजीज, लज्जतदार, और गल्ला भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, सब्जा भी बहुत उम्दा, वहां की आबो हवा भी बहुत अच्छी। इसीलिए तो इन लोगों की निगाह है उस पर हड़पने की, उसको कुछ बनाने की, उसको पिकनिक स्पॉट बनाने की या टूरिस्ट स्पॉट बनाने की। उतना अच्छा है वहां का माहौल, उतना अच्छा है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि मगरिब मशरिक, यानी सारा कुछ है। मगरिब मशरिक किसको बोलते हैं? सारा मगरिब मशरिक बोले तो सब कुछ, वहां का सब कुछ, यानी अर्ज़ फलस्तीन और ये शाम का जो एरिया है वो सारा जमीन इनको अता कर दिया, इसलिए कि ये बिमा सबरू, इन्होंने सब्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तलकीन की, सब्र की, तो इन्होंने सब्र किया, अल्लाह के से शिकायत नहीं की, इन्होंने सब्र किया ना, तो इसका फल अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया। तो इन्हें वारिस बना दिया। और दमरना, हमने बर्बाद कर दिया, माँ काना यसनऊ फिरौनो, जो भी बनाता था फिरौन। यसनऊ, सना यसनऊ उर्दू का है, सन्नत कारखाना उर्दू वर्ड है ये, यानी कुछ भी तैयार करना। इसकी फलती फूलती तिजारत थी, फलता फूलता एक तमद्दुन था, एक तहजीब थी, सब कुछ बनाते थे। वो पिरामिड्स कैसे बनाते थे, उसके वास्ते क्या क्या बनाते थे होंगे, उसके वास्ते मसाले बनाना, वो एम्बाम करने के लिए, बॉडीज को एम्बाम करने के लिए, उसे जो ता क़यामत उसे सेफ गार्ड कर रही, उसे हमेशा के वास्ते सेफ कर को रख रही, सड़ नहीं गल नहीं जाना कर को। तो उसके वास्ते सन्नतें थे, कारखाने थे, ये सब इनके इजादात थे इनके। ये सब इन्वेंट करे थे, इन्हों डिस्कवर करे थे, वो क्या क्या कुछ डिस्कवर करे थे। इनका तमद्दुन बहुत अच्छा था। तो ये सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया हमने, अल्लाह कह रहा है। इनकी वजह से, इनकी ये जो हुकूमत अली करते थे, ये जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, शिर्क करते थे, इसकी वजह से इनकी सन्नतां पूरे बर्बाद हो गए। जो भी फैक्ट्रीज थे, जो भी कारखाने थे इनके, सन्नत, और जो भी इमारतां थे, इमारतां भी जो भी थे इनके, वो अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। सन्नत को तो बनाना कर को। फिरौन के, वो कौम हो और उसकी कौम के, वमा कानू यारिशुन। यारिशुन क्या है? अब ये जो अंगूर के बेला चढ़ती उसे बोलती। अर्श, अर्श किसे बोलती? ये जो चार पत्थर खड़ा के उसके ऊपर भी एक दो पत्थर खड़ा कर जो बेल चढ़ाती ना, अंगूर की बेल, या उस तरह के जो बेला, जो तने उनके मजबूत नहीं होते, उनको जो सपोर्ट देकर खड़ाती उसे बोलती। और वही से जो उनके बागात थे वो भी बर्बाद कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया उनका, अल्लाह कह रहा है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि महावीरा तर्जुमा देख लीजिए मेरे नोटिंग्स में। ये जो कौम थी जो जबरदस्ती इन लोगों को बॉन्डेड लेबर में रखी थी, उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे, यानी फिरौन की जगह बनी इसराइल को जो गुलाम बनाकर रखे गए थे, इस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से माला माल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर जो था वो पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया, कोई शिकवा शिकायत नहीं की। अल्लाह का ये, अल्लाह पर भरोसा रख के उन्होंने सब्र किया था, इस वास्ते उन्हें वारिस बना दिया गया। और फिरऔन उसके कौम का
वो सब कुछ बर्बाद कर दिया गया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। चढ़ाते थे वो बेलें और बनाते थे क्या, वो जो चीजें हैं, जो भी सन्नत कारखाने जो भी थे वो जावजना भी बनी इसराइल अल बहरा फअतौ अला कौमी याकुफूना एतेकाफ से है, ये एतेकाफ करने वाला। मोतकिफ भी बोलती, हाकिफ भी बोलती। याकुफूना अला अस्नामिल लहुम कालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। इनके जैसा हमें भी एक बुत बना के दे दे, एक देवता बना के दे दे आई मूसा। काला इन्नकुम कौमुन तजहलून। वो जावजना, और हमने पार उतारा, उन्हें पार करा दिया, क्रॉस करा दिया, उनका बेड़ा पार लगा दिया। उर्दू में बा मुहावरा ऐसा बोलती है, बेड़ा पार लगना। समंदर से पार लगा के ला लिया। भी बनी इसराइल को हमने पार कर दिया, समंदर से आ गए, साहिल पर आ गए। अब अल बहरा, समंदर से ला लिया। फ़अतौ, तो यहाँ साहिल पर आ गया तो क्या देखा उन्होंने। फ़अतौ, ये आए किस पर, अतौ बोले तो आना, तो ये आए यानी उनका गुजर हुआ किस चीज पर, अला कौमी याकुफूना अला अस्नामिल लहुम। एक ऐसी कौम जो वहां बुतों की पूजा कर रही थी। याकुफूना का वर्ड आ रहा है, यानी ध्यान कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। अब ये जो एतेकाफ हम रमजान में करते हैं, क्या करते हैं, 10 दिन करते ना, क्या करते हैं, उसमें सब छोड़ छाड़ कर, दुनिया के सारे काम छोड़ छाड़ कर, मर्द हजरत मस्जिद में बैठती, औरतें घर में बैठती, और एक जगह मुख्तस कर लेती, एक जगह मुकर्रर कर लेकर वहां बैठती, इधर उधर बेकार के कामों में नहीं जाते, सिर्फ जरूरियात के लिए उठती। तो क्या होता है, ये अल्लाह को याद करना, अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद के लिए हमने सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर ये एक चीज पर मरकूज कर ली। तो ये तकाफ बोले तो किसी चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज कर लेना। तो यहाँ भी एक कौम ऐसी थी जो वहां एक देवी देवताओं को रख कर सामने, उनके सामने एतकाफ करते हुए बैठे थे। इनकी नजर पड़ी, बनी इसराइल की नजर पड़ी। ये पहले ही जब गुलामी में थे, फिरौनियों को भी देखा था इन्होंने ऐसी ही परस्तिश करते हुए, चांद की, सूरज की और देवों की और बहुत से उनकी परस्तिशें किया करते थे। अल्लाह असनाम, अल्लाह बोले तो पर असनाम किसकी जमा है, उर्दू वाले बोलिए, असनाम किसकी जमा, सनम वेरी गुड, सनम 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 शायरी में भी यूज होता है। सनम माशुका को भी बोलते हैं, सनम एक्चुअली बुत, सनम सनम बुत, उसके जमा असनाम, यानी बुतों पर से गुजर हुआ। लहुम, अपने, खालू, वो बोल रही मूसा अलैहिस्सलाम से, या मूसा इजअल, मूसा जअल ये मिलाए तो, नहीं तो इसे हमजतुल वस्ल को आप जेर देंगे। इजअल, बना दे, लना, हमारे लिए, इलाहा, एक इला, एक माबूद, कमा, जैसा के, जैसे, लहुम, उनके लिए, आलिहतुन, माबूदात यहाँ है ना, इन्हों जो पूजा कर रही है, ऐसा हमें भी बनाकर दे दे, हम भी पूजा करेंगे, हम भी ऐसा एतकाफ करेंगे, सामने बैठकर मेडिटेशन करेंगे। हाला, सर पकड़ कर बोल रही मूसा अलैहिस्सलाम, हम सोच सकती क्या हालत हुई होंगी, कितनी मुसीबत से, कितनी परेशानियां उठाकर लाए हैं इनको तालीम से सरफराज करने के लिए, इनको दुनिया का रहनुमा बनाने के लिए, रहबर बनाने के लिए, इनकी हालत क्या हो गई है। कहने लगे, इन्नकुम कौमुन तजहलून, आखिर तुम नरे के नरे जाहिल कौम ही हो, तुम जाहिल के जाहिल हो, तुम्हें कितना ही तुम्हें सुधारा जाए तुम आने वाले नहीं। हमारा भी वही हाल है, कितना ही बोलो शिर्क नहीं है, कुफ्र नहीं है, इससे बचो, उल्टी दलीलें, उल्टी तावीलें, आते नहीं, रास्ते पर नहीं आते, राहे रास्त पर। इनका हाल भी ऐसा ही था। तो सर पीट लिए होंगे मूसा अलैहिस्सलाम, इतना सब कुछ करके तुम्हें इतनी मुसीबत से बचा कर लाए हैं, कैसी तुम्हारी गुलामी थी, उससे बचा कर लाए, तुम्हें सरफराज करने के लिए, एक दुनिया का गाइड बनाने के लिए, दुनिया को तुम गाइड करना है, तुम ही इसी में फंस जा रहे हो, तुम तो बेवकूफ हो, नरे जाहिल हो, जाहिल के जाहिल हो। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर नहीं बोल रहे ना हम, 139। इन्ना हाउलाई मुतबर्रुम मा हुम फी
वो बातिलुम मा कानू यामलून। अब समझा रहे मूसा अलैहिस्सलाम, इनको समझा रहे कि देखो बेवकूफ हो, अहमक हो, ये लोग बर्बाद होने वाले, ये तरीका कार जो इन्होंने अपना रही, इसकी वजह से ये अज़ाबुन अलीम में पड़ने वाले, जहन्नम रसीद होने वाले। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रही, जिस तरीके की इन्होंने इबादत कर रहे हैं, वो तो बर्बाद होने वाले हैं, उसकी वजह से इन्हों बर्बाद होने वाले हैं, जहन्नम में जाने वाले हैं। जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है, बातिलुन मा कानू यामलून, ये जो भी कर रहे हैं ना वो सरासर बातिल है। तो इस पर ना जाना, इसकी तरफ देखना भी नहीं, समझा रहे मूसा अलैहिस्सलाम। खाला गैरल्लाहि अबगीकुम इलाहन व हुवा फद्दलकुम अलल आलमीन। आप कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए मैं ये गैर अल्लाह की तलाश करूं, एक बुत की तलाश करूं, अल्लाह को छोड़कर दूसरे किसी गैर माबूद की तलाश करूं क्या? वो हुआ फद्दलकुम, और अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दी है, अलल आलमीन, तुम्हारा मुकाम बहुत ऊंचा है, तुम अपने आप की मारिफत जानो, अपने आप को पहचानो। ये सरासर हमारी कौम पर फिट होता है, आज के हालात में हमारी कौम पर फिट होता है। हम अपने लिए लेना चाहिए, हमें किस लिए बनाया, किस लिए उठाया, उम्मत मुस्लिमा को किस लिए उठाया? तामरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम करोगे, तुम बुराई से रोकोगे, भलाई की तरगीब दोगे। हम खुद बुराई में फंस गए, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो हुआ फद्दलकुम, तुम्हें अल्लाह ने फजीलत दी है, अलल आलमीन, सारे आलमीन पर। तब के वक्त ऐसा ही था, अब ये फजीलत किसको दे दी गई है? चेंज हो गया। किसके साथ चेंज हुआ? तावील किबला जो हुआ बैतुल मक़दस से, जो बैतुल्लाह हुआ, किबला जो चेंज हुआ, उसी के साथ हमारी सरफराजी, मोमिनों की, उम्मत मुस्लिमा की सरफराजी हो गई। इनको दस्तबरदार किया गया, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया ये ओहदे से, और किसको चढ़ाया गया, सरफराज किसको किया गया? उम्मत मुस्लिमा को। कब? तावील किबला के साथ। अब उम्मत मुस्लिमा है जो फद्दल तू अलल आलमीन, ये बात जो मिसदाक आती है वो अब उम्मत मुस्लिमा पर आती है। अब इन्हों नहीं रहे, इन्हों क्या है वो, गदबुम बादु बि गदबुम मिनल्लाह, अल्लाह के गजब के मुस्तहक हो गए इन्हों। कौन है? बनी इसराइल। बनी इसराइल। अब भी वही हाल है, लेकिन कुछ धनधनाहट है, उसका भी वक्त आने वाला है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें तो अल्लाह ने फजीलत दी है सारे जहानों पर, तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर अल्लाह ने फजीलत दी है। तो तुम्हारे लिए मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरे एक गैर अल्लाह को एक माबूद बना दूं क्या? तुम्हारा ये मुकाम क्या? तुम्हारा मुकाम क्या है? तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारी बुलंदी क्या है? ये सब छोड़कर तुम गैर अल्लाह की परस्तिश पर उतर आ रहे हो, तुम्हारा ये मुकाम नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने फजीलत दी है, सारे आलमीन पर फजीलत दी है। तुम्हें रहबर बनना है, रहनुमा बनना है, लीडर बनना है। कहाँ ये कि तुम खुद फंस जा रहे हो बुराइयों में। तनबी कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। वो इज़ा अंजयनाकुम मिन आलि फिरौना यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, ये आ गया पिछले, अब फिर एक बार जिक्र आ रहा है। वो इज़ अंजयनाकुम, जब अंजयना, हमने तुम्हें नजात दी, अंजयनाकुम मिन आलि फिरौना, एहसान बताया जा रहा है कि अल्लाह कह रहा है मिन आलि फिरौना, आले फिरौन से तुम्हें बचाया गया। यसुमून लकुम, यसुमूना तुम्हें तकलीफ देते थे, सू बोले तो तकलीफ, यसु वो देते थे, मुजारे का सिगा है, वो देते थे तुम्हें, गायब का सिगा है। यसुमूनकुम, तुम्हें तकलीफ देते थे, सू अल अजाब, सू बहुत बुरा अजाब में मुब्तला करे थे तुम्हें, उससे तुम्हें हमने नजात दी। यो क्या, देखो यहाँ बताया जा रहा है क्या अजाब था। युक़त्तिलूना अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे। वो यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी लड़कियों को, औरतों को जिंदा रखते थे। क्यों? बॉन्डेड लेबर के लिए, फसल में काम करना, पिरामिड्स बनाना, क्या क्या काम थे इनके, छोटे मोटे बड़े छोटे सारे काम इन्हीं के हवाले थे।
وفی ذالکم بلاؤم من ربکم عظیم، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلا کسے بولتے ہیں؟ آزمائش، آزمائش تھی اس میں، ربکم تمہارے رب کی طرف سے بڑی عظیم آزمائش تھی، بہت زبردست آزمائش تھی تمہاری، بہت آزمایا اللہ تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہاں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون کی قوم سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا رکھے تھے، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ بانڈڈ لیبر کا کام کریں، وہ بھی عذاب ہی ہے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، احسان یاد کرو، پھر بھی تم کیا بتوں کی پوجا کرنے کے لیے موسیٰ کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر، تنبیہ ہے یہ 142 آیا نمبر، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي، میرے پیچھے میرا عہدہ سنبھالو، میری ذمہ داری سنبھالو، خلیفہ بن جاؤ میرے، اخلفنی، اگر آپ یہ دیں تو حمزۃ الوصل کو، فی قومی و اصلی ولا تتبی سبیل المفسدین۔ اب کون سا مرحلہ آیا؟ وہ وعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا موسیٰ کو؟ ثلاثین، 30 راتوں کا۔ کئی کو یہ اس میں مصلحت کیا ہے؟ اب یہاں ایک تو صحرا نوردی ہے، صحرا میں آ گئے ہیں، کھانا پینا پانی یہ سب کچھ ان کا بندوبست تو کر دیا ہے اللہ نے، لیکن پھر بھی دھوپ میں صحرا میں خاک چھان رہے ہیں، صحرا نوردی کا شکار ہیں، تو صحرا میں سرگرداں پھرنا ہے۔ اب ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، تو شکایت لے کر کس کے پاس آنا؟ کون ہے اب سربراہ، کون ہے ان کے؟ موسیٰ علیہ السلام، اب ان کے پاس آنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دینا ہے، اللہ تورات دینا، ہینڈ اوور کرنا ہے، اور وہ پتھر پر لکھی ہوئی تختیاں، بہت زیادہ وزنی تختیاں، وہ دینا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئی، ایک تو موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے درمیان ہے، اور ان کے ساری شکایتیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے، یا 6 لاکھ آدمیاں کا جو بھی جھگڑا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس کا خزیہ بھی انہوں چکانا، اس کا فیصلہ بھی انہوں ہی کرنا، اور ساری شکایتوں کو بھی اٹینڈ یہی کرنا، موسیٰ علیہ السلام بھی کرنا۔ اب اللہ کیا چاہتا تھا کہ انہوں ایک سو ہو کر پورا دماغ ایک طرف مبذول کر کے یہ ریسیو کرنا، یعنی اعتکاف، سمجھو اعتکاف، 30 راتاں بلایا کئی کو، ان کے درمیان نہیں رہنا، بنی اسرائیل کے درمیان رہے تو آئے دن کا کوئی نہ کوئی خزیہ، آئے دن کی کوئی نہ کوئی پنچایت، کوئی نہ کوئی ان لوگوں کا معاملہ رہتا ہے، تو اس میں الجھ کر رہے ہی کانٹ کانسنٹریٹ آن دس، اللہ کے پاس جانا، اللہ سے یہ جو تورات لینا اور اس کی عبادت کرنا، اس کے اعتکاف میں مشغول ہونا، اس کی طرف میڈیٹیٹ کرنا یا اس پر توجہ مرکوز کرنا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس واسطے مصلحت یہ تھی، اللہ نے مصلحت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلا لیا؟ کوہ طور پر بلا لیا، کوہ طور پر 30 راتوں کے لیے بلایا، 30 راتوں کے لیے، لیکن وہ 40 ہو گئی۔ کیوں 40 ہو گئی؟ یہاں یہ غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ 30 راتوں میں کیا تھا؟ کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، صرف عبادت کرنا تھا، صرف عبادت میں رہنا تھا، وہاں اونچائی پر بلندی پر اکیلے، سوچئے اکیلے تنے تنہا، اس وقت پیغمبروں کا کیسا حال ہے دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہم اگر اس کا کمپیریزن کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ غار ہرا میں بیٹھتے تھے، غار ہرا میں چھوٹا سا غار، وہ کیسا جا کر بیٹھتے تھے؟ اس وقت کی اندھیرا کیسا ہوتا تھا ہوں گا، وہ بھی پہاڑ کا اندھیرا، اونچائی کا اندھیرا، کوئی نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، کبھی کبھی کوئی گاہے باہے چرواہا وہ بھیڑیوں کو لے کر آ جاتا تھا، پھر وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر بھی جاتی تھی۔ یہ پیغمبروں نے کیسی محنت کی ہے، اللہ کی طرف دھیان لگایا، اس طرف توجہ مرکوز کی، حق پہچاننے کی جو جستجو کی، تو ان کو نبوت ملی۔
तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये नबूवत से तो सरफराज हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है ही अब ऑलरेडी, लेकिन अब क्या देना है, तौरात देना है। अब वो तौरात देने के लिए भी एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और एक मुबारक ये बनाया जा रहा है, इनको भी मुतबर्रक और तज़किया ये नफ्स किया जा रहा है, इनको भी मेडिटेशन में बैठना, ये 1 महीना 30 रातों की बात आ रही है, दिन इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब क्या हुआ, एतकाफ हुआ, दिन रात की इबादत हुई, 30 रातों की इबादत के लिए अल्लाह ने पहाड़ पर बुला लिया, ताकि पूरा पूरा ध्यान तवज्जो, पूरा अटेंशन तवज्जो के साथ, इसी हाँ। तरफ रहे, बनी इसराइल की तरफ ना रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, अब जाना है तो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना डेप्यूटी बनाया, खलीफा बोले तो डेप्यूटी, पीछे आने वाला जानशीन बनाया। देखो तुम संभालना है मेरे एब्सेंस में, यहाँ के सारे मामलात तुम देखना, और देखो मुफसिदों में भी नहीं हो जाना। देखिए वो वादा हमने वादा किया मूसा से, सलासीना लैलतन में 30 रातों का, वो अतममनाहा, और उसको हमने पूरा किया। अब ये एक पॉइंट है, 30 रात हो गए, 30 रात होने के बाद, 30 दिन 30 रात होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि मेरे मुंह से बू आ रही है। कैसी बू आती है, जब आप रोजा रखते हैं तो महसूस होता है नहीं, रोजा रखे होता है, तो वो हाँ। खाली पेट जो रहता है वो गैस की वजह से, खाली पेट की वजह से, और हमारा मुंह हमेशा बंद रहता है, चबाता नहीं, कुछ भी पीता नहीं, खाता नहीं, तो क्या होता है, एक तरह की बू आती है, गंदी ही बू आती है। लेकिन अल्लाह कहता है कि वो मुझे महबूब है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये महसूस हुआ कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, बरगजीदा हस्ती बारगाह, अल्लाह की बारगाह में जाना है, तो मैं कुछ सफाई कर लूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, थोड़ा उंगली से ही कर लिया होगा, वहां क्या होगा, या दातुन लिया होगा, सफाई कर ली, तो अल्लाह को वो नहीं पसंद आया, तो फिर 10 दिन का बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा पीरियड दे दिया, और 10 दिन जाओ तुम, और 10 दिन, और 10 दिन तुम एतकाफ करके आओ, ये और 10 दिन तुम इबादत करके आओ, और 10 रातों का या 10 दिनों का और बढ़ा दिया। तो ऐसा 40 दिन पूरे हो गए, 40 दिन हमने पूरा किया, वो आत्ममनाहा, और उसको हमने पूरा किया, बिअशरिन 10 यानी 10 बढ़ाकर पूरे 40 रात हो गए। फतम्मा तो पूरी हुई, मीकातु रब्बिही अल्लाह के तरफ से दी गई मीकात बोले तो वक्त मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो गई। कितनी हुई, 40 लैलत, 40 रातों की पूरी हो गई। वकाला और कहा, मूसा लिअखीही, पहले उससे पहले ये अल्लाह बोल रहा है 40 रातों की पूरी हो गई, उससे पहले, आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई से कह रही, उनको जानशीन बना रही। काला मूसा ने कहा, लिअखीही अपने भाई से, कौन, हारून अलैहिस्सलाम से, उक्लुफनी मेरे खलीफा बनो, मेरे पीछे मेरा चार्ज संभालो, मेरी जिम्मेदारी संभालो, इन लोगों की निगरानी करो, इन लोगों के मामलात देखो, नायब बनाकर, नायब डेप्यूट करके इनको, फी कौमी मेरी कौमी या ये मुतकल्लिम आया तो मेरी कौम की फिक्र है, मेरी कौम की तुम नायबी करना, नायब बन जाओ। वो असली और इस्लाह करना, वला तत्तबी और ना पैरवी करना, सबील मुफसिदीन फसाद के हद तक नहीं आना, फसाद करने वालों के रास्ते पर नहीं चलना, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है तुम्हें। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम अब आ गए, कहाँ पर, कोहे तूर पर। वलम्मा जाअ मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बुहु, वलम्मा और जब आए, जा बोले तो आया, मूसा आए, लिमीकातिना हमारे वादे की जगह पर, मीकात जगह को भी बोलती, टाइम को भी बोलती, ज़र्फ़े ज़मा ज़र्फ़े मका दो भी इंक्लूडेड इसमें, कई चीजों में ऐसा आता है, वक्त भी आ जाता है, जगह भी आ जाती है। वो कल्लमहु और उसने कलाम किया, रब्बुहु अपने रब से, मूसा कलीमुल्लाह है ना, कलाम करते थे। काला उसने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, अरी बोले तो दिखा, नी मुझे दिखा, अंजुर मैं देखूं, इलैका तेरी तरफ, तू मुझे अपना परतव दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कौन बोल रही, मूसा अलैहिस्सलाम। काला अल्लाह क्या बोल रहा है, लन तरानी, लन कई को आता है, हरगिज
हतर हरगिज नहीं, ना हो ही नहीं देखे। सकता। लम आता है, लम में क्या नहीं का ही मफहूम है, लेकिन इतना जोर नहीं है। लन में क्या है, जोर है, हो ही नहीं सकता, तुम देख ही नहीं सकते। लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, हरगिज नहीं देख सकते मुझे। वलाकिन इंजुर, लेकिन एक काम करो, उनजुर देखो, इलल जबली, वो जो सामने पहाड़ है ना उसकी तरफ नजर जमाए रखो। फ़इनिस्तक़र्रा, वो अगर वो अपनी जगह पर ठहरा रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो मकानहु, अपनी जगह पर वो अगर ठहरा रहा, फसौफा, तो फसौफा तरानी, तो तू मुझे देख लेगा। यानी अगर वो ठहरा रहा अपनी जगह पर, उसे कुछ नहीं हुआ था, तुम भी समझना कि तुम भी वो ताब ला सकोगे, अल्लाह के जलवे की ताब तुम ला सकोगे, तुम समझ सकते हो। फलम्मा, फिर अब हुआ क्या, फलम्मा, पस जब तजल्ला, तजल्ला जली तजल्ली, तजल्ली। अल्लाह का पूरा जलवा नहीं, सिर्फ एक झलक, एक तजल्ली पास किया अल्लाह ने, रब्बु हो, उसके रब ने, लिल जबली, जबल पर, पहाड़ की तरफ, पहाड़ पहाड़ की तरफ अल्लाह ने एक तजल्ली पास की। जालहू, उसको कर दिया धक्का, रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा हो गया, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पहाड़ नहीं संभाल सका, तो मूसा क्या संभालेंगे इंसान, पहाड़ पत्थर, उतना बड़ा पहाड़ को है तो नहीं संभाल सका। वो खर्रा, और गिरना, गिर गिर गया। पड़े, मूसा गिर पड़े, सही है, बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए, संभाल नहीं सके, पहाड़ गिरा, सो पहाड़ रेजा रेजा हो रहा है, उसे देख नहीं सके इनो, बेहोश हो गए। तो अल्लाह की तजल्ली बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये दुनिया में नहीं हो सकती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, कहाँ पर, जन्नत में। जन्नत में ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह सारे नेमतों से नवाज देता है जन्नतियों को, जन्नतियों को सारे नेमत दे देता है। फिर अल्लाह पूछता है, तुम्हें खुश हो क्या, मुझसे राजी हो क्या, मैं जो वादा किया था ना तुमसे दुनिया में, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, तुम्हें मिल गया क्या सब कुछ? तो खुश होकर कहती है, हाँ अल्लाह, सब कुछ मिल गया, हमारे सोचने से बढ़कर, हमारे ख्वाब ख्याल से बढ़कर, हमारे ख्वाब गुमान से भी बढ़कर मिल गया हमें। तो अल्लाह कहता है, नहीं, अभी एक बाकी है, एक नेमत बाकी है। वो क्या बाकी है, सब तो हमें मिल गया, सब खीरत में कहते। तो अल्लाह अपना जलवा दिखाता है, अल्लाह अल्लाह अपना जलवा दिखाता है, तो सब उश उश करने लगते हैं कि हाँ, सारी नेमतें हीच है, इस नेमत के सामने सारी नेमतें हीच है। तो वहां ये बड़ी नेमत होगी, लेकिन दुनिया में हमारी सकत नहीं है, हमारी अकल उससे मावरा है, हमारा शऊर उससे मावरा है, हमारी आंखें वो तब नहीं ला सकती, तो अल्लाह का जलवा हो नहीं सकता। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कहा जाता है कि मेराज में देखा नहीं देखा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि वो तो नूर है, कैसा देख सकती, वो तो नूर है, मुजस्सम नूर है, उसे कैसा देखा जा सकता है। तो यहाँ नफी हो गई, नहीं देखा नहीं देखा। तसव्वुफ वाले कहती देखा, जबकि आयशा कह रही है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा कह दे तो वो तो मोतबर स्टेटमेंट है ना, उसको तो लेना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है, तो अगर पहाड़ ठहर गया तो तू भी देख सकेगा, देखो। फलम्मा, पस तजल्ला पास किया, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा, फिर जब अफाखा, उर्दू में इफाखा बोलती हैं, इफाखा हुआ यानी उनको होश आ गया, जरा तबीयत सुधर गई। खाला सुबहानक, कहा बे इख्तियार कहे उठे, अल्लाह पाक है तू, मैं तो तेरा नहीं बर्दाश्त कर सकता था, मेरा छोटा मुंह, बड़ी बात हो गई ना, मैं क्या मुतालिबा कर बैठा, क्या फरमाइश कर बैठा, सुबहानक, तू पाक है। तुब तू इलैक, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, बहुत बड़ी फरमाइश कर दी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। वो अना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला, तेरे ऊपर मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं ही, यानी इतना मुझे मेरा ईमान इतना पुख्ता हो गया, इतना मुहक्कम हो गया मेरा ईमान। 144 आया नंबर। क़ाला या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासी बिरिसालाती व बिकलामी, अल्लाह कह रहा है अपना एहसान अगेन। क़ाला, कहा अल्लाह ने, फरमाया,
या मूसा, ऐ मूसा, इन्नी यकीनन इस्तफैतुका, मैंने तुझे चुन लिया है। मुस्तफा भी इसी से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तफा है ना, चुन लिया गया, चुनिंदा। तफैतुका, मैंने, इस्तफैतुका, मैंने तुझे चुना है, अलन्नासी, सारे लोगों पर, भी रिसालती, किस लिए, मेरी रिसालत के लिए। ये मुतकल्लिम है, मेरा पैगाम, रिसालत पैगाम पहुंचाना, पैगाम्बर, रसूल पैगाम्बर, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस काम के लिए तुझे मैंने चुन लिया है, वो भी कलामी, और मेरे कलाम के लिए भी। तुझसे मैं बात करता हूँ ना, तेरे इससे भी कलाम पहुंचता है, और वो जो तख्तिया है, कलाम के लिए भी और मेरे पैगाम पहुंचाने के लिए भी तुझे मैंने चुन लिया है। फखुस माँ आते तुका वकुम मिनश शाकिरीन, तो पकड़ो, फखुस, तो मुझसे हम कलाम होगा, तो जो कुछ मैं तुझे दूंगा उसे पकड़ लो और शुक्र बजा लाओ। फखुस, तो पकड़, फेले अमर है ये, अखजा या खुसू का खुज, ये सिर्फ 2 हर्फिया फेले अमर आता है। ये आपको बताना बोले तो बहुत से हैं ऐसे, खु अनफुसिकुम वो अहलिकुम नारा, हु जो आया ये तकवा से है, बचाओ, बचाओ, हु अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने जान को, और अहलिकुम, तुम्हारे घर वालों को, किससे बचाओ, नारा, जहन्नम की आग से। तो वहां भी 2 हर्फिया है, बहुत से 3 हर्फिया होती है, ये 2 हर्फिया है। और कहीं आए तो मैं बताती हूँ, 2 ही वर्ड आते, फेले अमर है ये। मीनश, हाँ, माँ तुका फखुस, तो पकड़ो, फा को अलग करो, खुश से, तो पकड़ लो, माँ तुका, जो मैंने तुझे दिया, वो कुम मिन शाकिरीन, और रहो किसमें, शुक्रगुजार शुक्रगुजार। बंदों में, शुक्रगुजार बंदे होकर रहो। फरमाया अल्लाह ने, ऐ मूसा, मैंने तमाम लोगों पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर, तुम्हें तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया है मेरी पैगंबरी करने के लिए और मुझसे हम कलाम होने के लिए। तो अब जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे ले लो और शुक्र बजा लाओ। 145, व कतबना लहू फिल अलवाही, अलवाह जमा किसकी है ये, लौह कलम। तख्ती को भी, स्लेट को भी कलम को क्या बोलती है, लौह कलम। लौह, लौह बोले तो तख्ती, अलवा बोले तो तख्तिया। मिन कुल्ली शैइन मौइज़तौ व तफसीलन लिकुल्ली शै, फखुज़हा, इसको पकड़ लो, बिकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, वामुर, वामुर कौमका याखुज़ू बिअहसनिहा सऊरीकुम दारल फासिकीन। अल्लाह अब तख्तियां दिया। उसके बाद हमने मूसा को हर एस्पेक्ट ऑफ जिंदगी के मुताल्लिक नसीहत और हर पहलू के मुताल्लिक वाज़े हिदायत दे दी। किस पर, लिख कर दे दी, सारी जिंदगी गुजारने का, जैसा हमें कुरान नाजिल हुआ है। कुरान इट्स ए मेथड टू लीड ए लाइफ, ये क्या है, तरीका कार है जिंदगी गुजारने का, जैसा मैनुअल ऑफ लाइफ, जैसा कोई मशीन चलाने के लिए ये करो, ये करो, ये बटन दबाओ, ऐसा करो आता है ना, ऐसा ही ऐसा जिंदगी गुजारो, ये मैनुअल ऑफ लाइफ है। इसको, इस पर कार्बन होना है, इसमें तालीमात है, कैसा जिंदगी गुजारना, शादी ब्याह के मामलात क्या, तलाक के मामलात क्या, तरके के मामलात क्या, मरे तो क्या, जिए तो क्या, जिंदगी के क्या, ये सारे मामलात कुरान में आ गए। अब ये समझ कर पढ़े तो ना उस पर अमल पैरा होंगे, नहीं समझे तोते की जगह पढ़ लिया, रट लिया, हिफ्ज भी कर लिया, फायदा क्या हुआ। हिफ्ज का अलग फायदा है, वो छोड़िए, उसका तो बहुत बड़ा दर्जा है, उसके माँ बाप को ही नूर का ताज पहनाएगा अल्लाह, तो हाफिज का क्या मुकाम होगा। लेकिन समझ कर पढ़ने की बात है, क्योंकि एक मैनुअल है ये। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि हमने वाज़े हिदायत तख्तियों पर लिख कर तुम्हें दे दी है, और उससे कहा इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभालना, मजबूती से पकड़ना, और अपनी कौम को हुक्म देना कि उनके बेहतर मानने की पैरवी करें, यानी उसे समझ कर पढ़ें। देखिए यहाँ कितना समझाया जा रहा है, उसे समझ कर पढ़ें, उसके मफहूम पर गौर करें। अन करीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा, यानी फासिकों को भी कौन है वो मालूम हो जाएगा। वामुल, पकड़ो, यहाँ देखिए, कौम का, अपनी कौम, या खुजू, वो पकड़े
अमल पैरा हो जाए, बिअहसनिहा, इसकी अच्छी बातें, इसमें जो जो भी तालीमात है ना, इस पर अमल पैरा हो जाए, इस पर कारबंद हो जाए, अच्छी बातों को अपना ले। सऊरीकुम अन करीब मैं तुम्हें दिखा दूंगा फासिकीन कौन है। इसका मतलब क्या है देखेंगे, इसका थोड़ा तशरीह है। यानी आगे चलकर तुम लोग इन कौमों के आसार खदीमा पर से गुजरोगे जिन्होंने खुदा की बंदगी व इताअत से मुंह मोड़ा और गलत रास्ते पर चल पड़े। तो इनको, इनके आसार को दिखाकर तुम्हें मालूम कराना ये मतलब है कि ऐसी रविश अख्तियार करने का क्या अंजाम होगा। जैसा आद समूद ये सब बर्बाद हुए, कहीं उनकी राह पर ना चलना, वरना उन्हीं की बर्बादी जैसा उनके हक में आई थी वैसी तुम्हारी भी बर्बादी हो जाएगी। अब नेक्स्ट यह आयत भी आसान ही है, 146 सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबीला रुश्दी ला यत्तखिज़ूहु सबीला व इन यरौ सबीलल गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। इसका बामुहाविरा तर्जुमा पहले पढ़ देती हूँ, फिर टाइम हो गया है तो कल उसकी थोड़ी तशरीह। अल्लाह कह रहा है, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन पर बड़े बनते फिरते हैं, बड़ा तकब्बुर करते हैं ना, उनके मुताल्लिक। वो कोई निशानी देख लें, कभी इस पर ईमान ना लाएंगे। कुछ भी निशानी उनके सामने आ जाए वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो उसे इख्तियार ना करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाही बेइतनाई बरती है। अब इसकी तशरीह कल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।